Well, many people predicted that BJP's long-running reign in Madhya Pradesh would end due to anti-incumbency, as they have been in power for almost 2 decades. However, the exit polls have surprised with the Times Now ETG projection showing that the Congress is just ahead of the BJP by a razor-thin margin. The Congress is poised to win 109 to 125, while the BJP will likely bag 105 to 117 seats. However, an aggregate of 7 exit polls indicates that the BJP may wind up with 123 of the state's 230 seats, where the majority mark is 116. Now, the Congress may get 104 seats. That's what the poll of poll projects. Right. So, poll of polls shows that the Bharatiya Janata Party is ahead. That's an aggregate that we are getting for you, according to which you can see how very comfortably BJP seems to be getting 123 if you do overall calculation of the poll of polls, and the Congress seems to be getting 104. According to the Times Now ETG survey, the Congress party seems to be getting 117 and BJP 111 seats. According to other statistics, you can see there's a very close fight, a neck-to-neck fight between the Congress and the BJP as far as Madhya Pradesh is concerned. Now, the Congress camp hoped to surpass majority in the exit polls, but it has caused concern. Despite this, they remain confident that they can comfortably secure 130 seats. The Congress party emphasizes that they value people's verdict over predictions of the exit polls. अभी जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वेरियस न्यूज़ चैनल्स की, एजेंसीज की, कुछ सरप्राइजिंग भी हैं, कुछ में टाइट फाइट है, कुछ में मार्जिनल विक्ट्री भी है कांग्रेस की, आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसे स्पष्ट बहुमत देखता हूं। मेरा जो अनुभव है पिछले कई सालों का और थोड़ा बहुत जो मध्य प्रदेश को मैं जानता हूं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं कि इस बार जनता में नाराज़ी है भाजपा के खिलाफ, और ये नाराज़ी वोटों में परिवर्तित होकर रहेगी और हमें 130 सीटों से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। Okay, voting turnout has increased with more than 1%. So how you just look at this scenario? That is always against the establishment. नाराज़ी का वोट जो होता है वो हमेशा से विपक्ष को जाता है और उसमें वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। Sir, if the margin of victory is near means little more than majority, last time you have seen the experience of toppling the government. How you see that situation if it? We'll be more careful this time. Okay. We'll be more careful. What is the estimation of Mr. Digvijay Singh regarding this? My own estimation is still 130 plus, because people have voted for the Congress party. And there is huge anger against the present government. How would you say, final question, last question, Times Now also has presented the survey. It has given 117 to Congress party and 111 to BJP. That's a very conservative estimate. This thing is nothing less than 130. Well, nothing less than 130 says Digvijay Singh for Congress in Madhya Pradesh. Some in Congress have even declared that Kamal Nath will take oath as the Chief Minister of Madhya Pradesh. Listen in. देखिए, 17 तारीख को जनता ने जनादेश तय कर दिया है। 2 दिन बचे हैं। 3 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आदरणीय राय साहब, कमलनाथ जी, जितने भी सीनियर नेता हैं, सब ने जी तोड़ पिछले 3 साल से मेहनत की है और रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में, जैसा कि सर्वे हुए हैं और भी चीज़ों, 120 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को मिल रही हैं। जो भी सर्वे चल रहा है मीडिया कर रही है। Now, the BJP is also feeling optimistic after looking at the exit polls. The party claims that the poll of polls have quelled naysayers predicting a close competition, as the BJP asserts it is a one-sided contest. मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। गोविंद joining us live on the broadcast. गोविंद, हमने आपकी बातचीत सुनी दिग्विजय सिंह के साथ। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि 130 से कम कुछ नहीं। दूसरी तरफ बीजेपी भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और पोल ऑफ पोल्स के नंबर्स की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक एज मिलता जरूर दिखाई दे रहा है।
गुड मॉर्निंग स्वाति। और देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो कांग्रेस के दावे थे एक्चुअली कि जो हवा है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में चल रही है। कमलनाथ ने भी कल ट्वीट किया और कहा कि ये इस तरह के जो पोल्स के सर्वे जो रिपोर्ट्स आई हैं उनको लेकर भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र विजन से चलता है, टेलीविज़न से नहीं। और जैसे कि कुछ एग्जिट पोल्स के जो सर्वे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। एक तरफा बीजेपी की भी जीत बताई गई है और आधे सर्वेज में लगभग एज कांग्रेस को दिखाया गया है। लेकिन काफ़ी चर्चा में है मध्य प्रदेश का सर्वे अगर कहा जाए एग्जिट पोल का, जिसमें कुछ एजेंसीज ने एज दिया है कांग्रेस पार्टी को, जबकि 2-3 एजेंसीज ने काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे दिए। 150 प्लस तक बीजेपी को दिखाया गया है। सो दैट इज समवॉट सरप्राइजिंग फॉर कांग्रेस पार्टी एंड दे जस्ट सेइंग दैट इट्स nothing like on ground reality the survey has been conducted on in fact। और यहाँ पर जो हमारा टाइम्स नाउ का सर्वे उसको लेकर जब हमने बात की दिग्विजय सिंह से, तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि आपका जो सर्वे है वो ओके है, लेकिन हम लोग 130 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जो कहा जा रहा था कि भाई कांटे की टक्कर, लेकिन लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। तो अपने अपने दावे हैं, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बाद अब एग्जैक्ट पोल जो आना है 48 घंटे बाद, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के नतीजे काफी रोचक रहेंगे, इसका अनुमान सभी लगा रहे हैं। तब स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा एग्जिट पोल जो है वो सही साबित हो रहा है। गोविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। कैलाश विजयवर्गीय से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा इस बातचीत में बीजेपी की जीत को लेकर, सुनिए। विजयवर्गीय जी, एग्जिट पोल आ रहे हैं, कोई पोल दिखा रहा है मुकाबले की टक्कर और 2 पोल दिखा रहे हैं बीजेपी का स्वीप, और आपकी जो स्माइल है वो बता रही है कि शायद सिर्फ राज्य बीजेपी के पास नहीं, आप मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। कुछ ऐसा है क्या? आप मेरी शुभचिंतक है ना, तो अभी तो खाली जीतने की बात करिए और बहुमत लाने की बात करिए, और कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो हमारे सब लीडर तय करेंगे। पर हाँ, मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि मैंने पहले दिन भी कहा था कि 130 कम से कम आएगी और अधिकतम 160 आएगी। आज भी मैं उसको दोहरा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमने 20 सालों में जनता की सेवा की है। मोदी जी का नेतृत्व है, डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना है। प्रदेश में शिवराज जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से हमने प्रदेश की गरीबी दूर करने का प्रयास किया। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो गया। मुझे याद है दीदी, जब मैं मिनिस्टर बना था पीडब्ल्यूडी 2003 में, जब सड़कें हमारे यहाँ 60,000 किलोमीटर गड्ढे वाली सड़कें थी, आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें हैं बिना गड्ढे की। ये डेवलपमेंट बहुत साफ दिखाई देता है और लोग महसूस कर रहे हैं। डेवलपमेंट साफ दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी का इंटरनल सर्वे क्या बताता है, कितनी सीटें हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि 130 कम से कम आएगी और 160 तक जा सकती है। मैंने तो आज हमारे वरिष्ठ नेताओं को भी सीट का आंकड़ा दिया है। ये सीट हम जीतना है, ये सीट में हमारी फाइट है, ये सीट हम जीत सकते हैं। जीत का फैक्टर नरेंद्र मोदी का करिश्मा है, लाडली बहना स्कीम है, सेंट्रल स्कीम्स हैं, क्या कारण बताते हैं आप इस अगर जीतते हैं? नंबर देखिए तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, डबल इंजन की सरकार, उसके बाद गरीब कल्याण की सारी योजनाएं, उसमें लाडली बहना योजना भी है, और इसलिए कुल मिलाकर एक गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते के अंदर अलग अलग फूल हैं और उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, आयुष्मान योजना भी है, लाडली लक्ष्मी योजना भी है, लाडली बहना योजना भी है। तो ये सब का गुलदस्ता है जनता की सेवा का। कैलाश विजयवर्गीय जी, 2024 के लिए क्या मैसेज रहेगा मध्य प्रदेश का अगर बीजेपी चुनाव जीतती है? लेकिन कांग्रेस ने काफी मुकाबले की टक्कर दी है 2018 में भी, अब 2023 में भी। लोकसभा के लिए क्या आप आकलन लगा रहे हैं? 2018 में कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया था, किसानों के कर्जे माफ करने का वादा किया था, बेरोजगार नौजवानों को 4000 भत्ता देंगे ये वादा किया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी महिलाएं हैं उनका कर्जा माफ कर देंगे, जितने अस्थायी शिक्षक गुरुजी थे उन सबको स्थायी कर देंगे। एक भी मांग पूरी नहीं की और इसलिए पिछली बार चुनाव अच्छा नहीं लड़ा, कांग्रेस ने जनता को ठगा। और इस बार
जनता समझ गई कि कांग्रेस ठगने वाली पार्टी है, इसलिए उनके घोषणा के पत्र की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं और सीधे भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मुख्य दावेदार मुख्यमंत्री के लिए कौन है? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको पार्टी का नेतृत्व आदेश देगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी कि शिवराज चौहान के चांसेस? सबके चांस है, सबके पार्टी में सब बराबर, हाँ सबके चांस है। पार्टी जिसको क्योंकि सक्षम कार्यकर्ताओं की हमारे पास टीम है और उनकी टीम के कारण ही हम लोग यहाँ पर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंतजार रहेगा 3 तारीख का। 3 तारीख को हम फिर बात करेंगे कि आपके आंकड़े सही होते हैं या पोलस्टर्स के आंकड़े सही होते हैं। 3 तारीख को इसका फैसला होगा। Let's shift focus